بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک ہی مجھے سانس لینے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ مجھے سوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سینے کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ لمبے لمبے سانس لے کر میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میری تکلیف لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی، باہر ہی نہ آ رہی تھی۔ میں منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اب یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اچانک ہی قریب کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے سینے پر موجود بوجھ کم ہونے لگا اور پھر ختم ہو گیا۔ سینے میں اٹکا ہوا سانس منہ کے راستے خارج ہوا تو میری جان میں جان واپس آئی۔ لحاف کو تیزی سے ایک سائڈ پر کرتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے کو دباتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی میری حالت سنبھل گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے علاوہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تکلیف کی شدت سے ابھی تک میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر ایک بار پھر میں آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا تاکہ میری طبیعت مکمل طور پر بحال ہو جائے۔ کچھ دیر تک کچھ سمجھ نہ آنے والی کیفیت میں بیٹھا رہا اور پھر وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلا تو سلطان صاحب بھی مسجد میں جانے کے لیے تیار تھے اور میرے کمرے ہی کی طرف آ رہے تھے۔ کہنے کو تو سلطان صاحب میرے مالک تھے اور میں ان کا ملازم، لیکن کبھی انہوں نے میرے ساتھ یا کسی بھی ملازم کے ساتھ مالک و مالا رویہ نہ رکھا تھا، بلکہ وہ سب ملازمین کو گھر کے فرد ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ آج تو بہت جلدی تمہاری آنکھ کھل گئی۔ ہر روز تمہیں آواز دینی پڑتی تھی اور پھر انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ سلطان صاحب نے میری طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ آج اذان کی آواز سے ہی آنکھ کھل گئی تھی، اس لیے آپ کو میرا انتظار کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑی۔ سنجیدگی سے میں نے جواب دیا۔ پچھلے 2 سال سے میں سلطان صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ سلطان صاحب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور مجھے بھی بار بار نماز کی پابندی کرنے کا کہتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں فجر کی نماز میں تو ان کے ساتھ ضرور مسجد جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ باقی نمازیں بھی وقت پر ادا کر سکوں۔ کبھی میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا تھا اور کبھی دوستوں میں بیٹھ کر بھول جاتا تھا۔ نماز پڑھ کر واپسی پر مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ نہ جانے یہ میرے ذہن کو کیا ہو گیا ہے، میں کیوں عجیب بہکی بہکی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے میں گھر کی پچھلی طرف بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے مالی سلیم نے اپنی فیملی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا، تو سلطان صاحب نے چوکیدار کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ مجھے دے دیا تھا۔ سلیم کی فیملی میں اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل تھے۔ ان سب کے ساتھ میرا رہنا مناسب نہ تھا۔ یہ کمرہ عموماً بند ہی رہتا تھا کیونکہ سلیم تو زیادہ تر باہر گیٹ پر وقت گزار دیتا تھا اور اس کے آرام کرنے کے لیے گیٹ کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور اسی میں آرام کرتا تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے ساتھ درمیانے سائز کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کچھ فالتو سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر میں نے اس کمرے کی صفائی کی اور رہنے کے قابل بنایا۔ چند دن سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں میں اکیلا نہیں رہتا بلکہ کوئی اور بھی رہ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والے کو میرا رہنا بالکل بھی پسند نہیں رہا۔ اکثر رات کو مجھے اپنا سانس بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی پہاڑی پر کھڑا ہوں اور میں نیچے گر جاؤں گا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں ان سب واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ان چند دنوں میں میرے ساتھ رونما ہوئے تھے۔ یہ سب حیرت انگیز واقعات تھے جن کی مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ شاید میں سانس کی کسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، اس لیے سوتے ہوئے میرا سانس بند ہو جاتا ہے۔ سب منفی خیالات ذہن میں سے جھٹکتے ہوئے میں نے خود سے کہا۔ میں اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، شاید ایسا ہی ہے۔ میں سگریٹ بھی تو پیتا ہوں، اب مجھے احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں اپنے بوڑھے والدین اور بہنوئی کا سہارا ہوں، مجھے سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ خود کو نصیحت کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں آنے والے سب منفی خیالات کو جھٹک دیا۔
सुल्तान साहब की पुरानी मुलाजमा फाखिरा नाश्ता बना कर ले आई थी। क्या बात है तनवीर, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोए ही नहीं। नाश्ता टेबल पर रखते हुए फाखिरा ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे रात को उस कमरे में नींद नहीं आती, बहुत देर तक करवटें बदलता रहता हूँ, उसी में आधी रात गुजर जाती है, फिर कहीं जाकर मेरी ऊँग लगती है। बेबस लहजे से मैंने जवाब दिया। तुम्हारी आंखें और चेहरा देखकर मैं पहचान गई थी कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। आंखें सूजी हुई और चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए फाखिरा ने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, नई जगह है, नया कमरा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे बचपन से ही यही आदत है कि किसी नई जगह पर मुझे जल्दी नींद नहीं आती। मैं उस जगह का आदी नहीं हो पाता। चंद दिन में उस कमरे से भी मानूस हो जाऊंगा, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। फाखिरा की फिक्रमंदी पर मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है। हम तो सारा दिन कामकाज करके इतने थके हुए होते हैं कि जब बिस्तर मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं। तुम सारा दिन सिर्फ गाड़ी ही तो चलाते हो, थकते नहीं हो ना, इसलिए बिस्तर पर नींद नहीं आती, नखरे करते हो। हंसते हुए फाखिरा ने तंजी अंदाज से कहा। उसके बाद सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगा था। अपना ख्याल रखना, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आती तो सुल्तान साहब से बात कर लो, हो सकता है वो मसले का कोई हल निकाल लें। संजीदा लहजे से फाखिरा ने कहा, अगर मैं उनसे अपना मसला बयान करूं तो वो जरूर उसका हल करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई हल भी निकाल ही लेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। वो पहले ही हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ न पहुंचे। नाश्ता शुरू करते हुए मैंने जवाब दिया, ये भी तुमने अच्छी बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तान साहब जैसे नेक लोग कम ही होते हैं। तुम रात में जल्द सोने की कोशिश किया करो, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही तुम आदी हो जाओगे। फाखिरा ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। उस वक्त वो बहुत मसरूफ होती थी। घर के सब मुलाजमीन के लिए खाना बनाना फाखिरा की जिम्मेदारी थी। मैं नाश्ता करने में मसरूफ था जब अचानक ही छत से किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज पर मैंने जल्दी से निगाह उठाकर देखा। एक बड़ी सी छिपकली कमरे के दरमियान में बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि ये मर गई है। इसके बेहिस्सो हरकत पड़े वजूद को देखकर मैंने खुद से कहा, खाने के बाद उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। दोबारा नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने सोचा। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं छिपकली को उठाकर बाहर फेंकने के लिए अपनी जगह से उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि अब तो कमरे के फर्श पर उसका मुर्दा वजूद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरत भरी निगाहों से मैं उसे कमरे में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं भी ना थी। ये कैसे हो सकता है? वो छत से नीचे गिरी थी और मेरा ख्याल है नीचे गिरते की वजह से मर भी गई थी, लेकिन हो सकता है कि वो मरी ना हो, सिर्फ बेहोश हुई हो और होश आने पर अपने ठिकाने पर वापस चली गई हो। कमरे में इधर उधर उसकी तलाश करते हुए मैंने सोचा। घड़ी पर वक्त देखा तो सुल्तान साहब के दफ्तर जाने का वक्त हो रहा था। सब काम छोड़कर जल्दी जल्दी से मैं भी तैयार हो गया और गाड़ी के करीब आकर खड़ा हो गया। सुल्तान साहब के आने में अभी कुछ देर बाकी थी, इसलिए मैं कपड़ा लेकर गाड़ी के शीशे साफ करने लगा। अचानक ही गाड़ी की विंड स्क्रीन पर धड़ाम की जोरदार आवाज से एक छिपकली आकर गिरी। जल्दी से चंद कदम पीछे हटकर मैं हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से विंड स्क्रीन पर पड़ी हुई छिपकली को देखने लगा। यह भी साइज में काफी बड़ी थी। लॉन में गाड़ी खुले आसमान के नीचे खड़ी थी और मैं हैरान हो रहा था कि यह छिपकली आसमान से कैसे गिर गई है। तनवीर, तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो बैठो फिर गाड़ी में, मैं आज लेट हो गया हूं। एकदम से सुल्तान साहब ने मेरे करीब आते हुए कहा। मेरी उनकी तरफ पीठ थी। जी साहब जी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तेजी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए मैंने कहा, अगर तैयार हो तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से गाड़ी में बैठो। कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए सुल्तान साहब ने कहा। मैं उन्हें छिपकली के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ये क्या? जब मैंने दोबारा विंड स्क्रीन पर देखा तो कुछ भी मौजूद न था। छिपकली गायब हो चुकी थी। मुझे तो अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस होने लगी थी। ये सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ ना समझ आ रही थी। क्या हुआ तनवीर? तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि देर हो रही है, जल्दी करो, और तुम न जाने किन सोचों में गुम हो।
सुल्तान साहब गाड़ी का दरवाजा खोलकर जब बैठने लगे तो मुझे गुमसुम खड़े देखकर हैरान होते हुए पूछा, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। सर झटकते हुए मैंने तेजी से कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मैं अब भी बेयकीन निगाहों से विंड स्क्रीन को ही देख रहा था। यहाँ पर चंद लम्हे पहले छिपकली आकर गिरी थी, लेकिन वो फिर खुद ही गायब हो गई थी। एक लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर दी। आज तुम घर पर ही रुकना, घर में से मेरी अम्मा और बेगम ने शॉपिंग पर जाना है। तुम ही उन्हें लेकर जाना और उनका बहुत ख्याल भी रखना। तुम जानते हो कि अम्मा जान की सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके करीब करीब ही रहना, ताकि अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़े तो कोई मसला ना हो। जब मैंने सुल्तान साहब के ऑफिस के सामने गाड़ी रोकी तो गाड़ी से नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। दादी अम्मा और बेगम साहिबा मेरे साथ ही बाजार शॉपिंग पर जाती हैं और मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर झुकाकर इंतहाई आजिजाना अंदाज से मैंने सुल्तान साहब को तसल्ली दी तो वो सर हिलाते हुए चले गए। घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मुझे आराम करने का बहुत वक्त मिल जाता था। सुल्तान साहब के दोनों बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी, जबकि उनके बड़े भाई सुलेमान और उनकी फैमिली के लिए एक और ड्राइवर था जो रात यहाँ पर ना रुकता था। शाम होते ही घर वापस चला जाता था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अपने बिस्तर की तरफ देखते हुए मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सर से पांव तक चादर ओढ़कर कोई शख्स मेरी चारपाई पर आराम कर रहा था। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि मेरे बिस्तर पर कौन आराम कर सकता है। शायद चौकीदार यहाँ पर सो रहा है। दिल ही दिल में मैंने कयास राय की और आगे बढ़कर चादर का एक कोना थोड़ा सा हटाया, लेकिन ये क्या, बिस्तर पर तो कोई भी मौजूद न था। खौफजदा होते हुए मैं चंद कदम पीछे हट गया। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। बहुत वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था कि कोई शख्स चादर ओढ़े सो रहा है, लेकिन जब मैंने चादर हटाकर देखा तो कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अपना सर पीटते हुए मैंने सोचा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि ये सब वाकयात तो मेरी समझ से बालातर थे। बालों में उंगलियां फंसाए, आंखें बंद किए, मैं बेबसी की तस्वीर बना बैठा था, जब अचानक ही मुझे अपने कान के करीब किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मुझे अपने कानों पर गरम गरम सांसों की तपिश महसूस हुई तो मैं जल्दी से उठ खड़ा हो गया और खौफ और हैरत ज़दा निगाहों से अपने करीब देखने लगा, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई न दे रहा था। मेरे कान की लौ पर अभी भी सांसों की गर्मी का एहसास हो रहा था। खौफजदा निगाहों से उस जगह पर देख रहा था जहां पर मैं बैठा हुआ था। कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मुझे अपने सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में कदमों की चाप सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजे की तरफ जा रहा है। चलने की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई शख्स दिखाई न दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाज मुझसे दूर होती जा रही थी और फिर खत्म हो गई, जिसका मतलब था नजर ना आने वाला शख्स कमरे से बाहर आ चुका है। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने बेबसी से पूरे कमरे पर एक नजर डाली और खुद भी कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अपना दम घुटते हुए महसूस हो रहा था। मेरा शक यकीन में बदल रहा था कि इस बंद कमरे में कोई गैर मरई मखलूक आबाद है जो मुझे इस कमरे से निकाल देना चाहते हैं। बाहर लॉन में आकर मैं गाड़ी के करीब ही जमीन पर बैठ गया। मुझे अपने आसपास मौजूद हर चीज बहुत खौफनाक और डरावनी दिखाई दे रही थी। यह मेरे अंदर का खौफ था जो मुझे हर चीज में दिखाई दे रहा था। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि जिंदगी में ऐसे वाकयात से इससे पहले कभी वास्ता ही ना पड़ा था। अब ये सब कुछ देखना पड़ रहा था, लेकिन मुझे अंदाजा न था कि इन मसाइल से कैसे जान छुड़वाई जा सकती है। तुम यहां पर क्यों बैठे हुए हो और क्या कर रहे हो? मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक ही फाखिरा ने मेरे करीब आकर कहा। तो मैं अपने ख्यालात की दुनिया से वापस पलटा। तुमने मुझसे कुछ कहा है? उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा। तुमसे ही पूछ रही हूं कि यहां पर क्यों जमीन पर बैठे हो? अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। लेकिन तुम तो ना जाने कहां खोए हुए हो। मुझे तो कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए फाखिरा ने संजीदगी से कहा। सुल्तान साहब ने कहा था कि घर वाले शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। फाखिरा के पूछने पर मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। यहां पर बैठकर इंतजार करने का क्या मकसद है? आराम से अपने बिस्तर में जाकर लेट जाओ, जब बेगम साहिबा ने जाना होगा तो तुम्हें बुला लेंगी। फाखिरा ने मशवरा देते हुए कहा।
कमरे में मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर खुली फिजा में आ गया। सर झुकाकर मैंने जवाब दिया, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रही हूं। तुम बहुत उलझे उलझे और परेशान दिखाई देते हो। आज सुबह भी मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी सेहत ठीक है ना? क्या वजह है कि तुम पहले की तरह ना ही कोई बात करते हो और ना ही हंसते हो, बस परेशान ही नजर आते हो? फाखिरा ने हमदर्दाना लहजे से पूछा। मैंने इन सब अजीबो गरीब वाकयात के बारे में फाखिरा से बात करने का सोच लिया था। हो सकता था कि वही उनका कोई हल निकाल देती। इससे पहले कि मैं उसे अपने मसले के बारे में बताता, बड़ी बेगम साहिबा और सुल्तान साहब की बेगम दोनों ही बाहर आते हुए दिखाई दिए, तो मैं जल्दी से उठ खड़ा हो गया। फाखिरा भी उनकी तरफ देखकर मतवज्जे हो गई। कैसे हो तनवीर? करीब आकर बड़ी बेगम साहिबा, जो कि सुल्तान साहब की वालिदा थी, ने बहुत मोहब्बत से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छोटी बेगम साहिबा फाखिरा को रात के खाने की हिदायत दे रही थी। उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को कोई बहुत खास मेहमान आने वाला है, जो खाना भी उनके साथ ही खाएगा, और वो फाखिरा को हर काम की निगरानी करने की हिदायत दे रही थी। बाजार से हम जल्द ही घर वापस आ गए थे और आज सुल्तान साहब ने भी ऑफिस से जल्दी आने के लिए मुझे कॉल कर दी थी। शायद कोई खास मेहमान आ रहा है जिसके लिए सुल्तान साहब जल्दी घर आ रहे हैं। सुल्तान साहब के जल्दी घर जाने पर मैंने सोचा और फिर मैं इजाजत लेकर अपने दोस्तों के पास चला गया। मुझे अपने कमरे में जाते हुए खौफ महसूस होता था और अपनी तबीयत भी कुछ अच्छी महसूस ना हो रही थी। आराम करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों के पास चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन कब तक घर से बाहर रह सकता था। रात का अंधेरा फैलते ही घर वापस आ गया और अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद फाखिरा भी खाना लेकर आ गई। दिन का खाना तुमने नहीं खाया और अब भी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लग रहा था कि तुम भूखे हो, लेकिन तुम तो न जाने कहां पर घूम रहे थे। खाना मेरे सामने रखते हुए फाखिरा ने कहा, अरे बहन, मैंने कहां घूमना है, बस दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ बातें कर रहा था। और सच बताऊं तो मुझे इस वक्त भूख भी लग रही है। दिन को मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। फाखिरा के डांटने पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो खुश हो गए कि सुल्तान साहब जल्दी घर वापस आ गए हैं। अब तुम्हारे करने के लिए कोई काम बाकी नहीं है, तो अपने दोस्तों में जाकर वक्त जाया कर सकते हो। फाखिरा ने डांटते हुए कहा, अरे नहीं, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक महसूस ना हो रही थी। बहुत दिनों से मैं रात को आराम से सो नहीं सका। मैं सोना चाहता था, अपनी नींद पूरी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। जानती हो क्यों? उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई संजीदगी से मैंने पूछा। अब मुझे क्या इल्म कि तुम दोस्तों के पास क्यों गए थे, तुम्हारा कोई जरूरी काम भी हो सकता है। फाखिरा ने जवाब दिया, तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे उस कमरे में तन्हा दर्द महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस कमरे में मेरे अलावा और कोई भी रहता है, जो मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन मैं उसकी मौजूदगी को वाज़ेह तौर पर महसूस करता हूं। मैंने इंतहाई संजीदगी से फाखिरा के सामने अपना मसला बयान किया। तुम मुझे पागल लग रहे हो। ये कैसे हो सकता है कि उस कमरे में कोई रहता हो, लेकिन वो तुम्हें दिखाई भी ना दे रहा हो और तुम उसकी मौजूदगी भी महसूस होती हो। और मैं पीछे बहुत दिनों से तुमसे कह रही हूं कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। अब तो मुझे ये यकीन भी हो गया है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। फाखिरा ने संजीदा अंदाज से मेरी बात का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम इसे मजाक समझ रही हो। ऐसा नहीं, मैं बहुत संजीदा हूं। बहुत बार मुझे कमरे में किसी के चलने की, हंसने की, उठने बैठने की आवाजें सुनाई देती हैं। कमरे में मैं अकेला होता हूं, इसलिए खामोशी होती है, तो ये आवाजें सुनाई देना कोई मुश्किल नहीं। अपनी बात पर जोर देते हुए मैंने कहा, तुम रात को अच्छी तरह से दुआएं पढ़कर सोया करो, उम्मीद है कि उससे कुछ बेहतरी हो जाएगी। इस बार फाखिरा ने भी संजीदा लहजे से जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें अभी तक मेरी बात का यकीन नहीं आया। ये तो तुम जानती हो ना कि ये कमरा जिसमें अब मैं रहता हूं बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि पिछले 2 साल से मैं इस घर में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस कमरे को कभी इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, बल्कि जब भी देखा बंद दरवाजा ही देखा। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी बंद कमरे में कोई दूसरी मखलूक आबाद हो जाए? सवालिया निगाहों से फाखिरा की तरफ देखते हुए मैंने सवाल किया, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि सुल्तान साहब से बात करके देखो, वो उस मसले का कोई हल निकाल देंगे। फाखिरा ने मुझे मशवरा दिया,
मैं भी यही सोच रहा हूं कि अब सुल्तान साहब से बात करना ही पड़ेगी। कुछ सोचते हुए मैंने जवाब दिया, अच्छा, बातें करते रहोगे या खाना भी खाओगे? खाना बातों के दौरान ठंडा हो गया होगा। अब तुम जल्दी से खाना खा लो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊंगी और ये बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात तुम इस कमरे में मत सोना, चौकीदार के कमरे में सो जाओ। कम से कम तुम्हारी नींद तो पूरी हो जाएगी। वाखिरा ने मुझे मशवरा दिया और कमरे से बाहर चली गई। वो ऐसी ही थी, उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी। मैं जब से इस घर में आया था उसे यहाँ पर काम करते हुए देख रहा था। नहीं जानता था कि वो कब से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन वो हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई का ख्याल रखती हो। उसने मुझे मशवरा तो बहुत अच्छा दिया था कि मुझे चौकीदार के कमरे में आराम करना चाहिए, लेकिन वो रात भर अपने कैबिन में बैठकर पहरा देता है और दिन में ही सोता है। मुझे रात को उसके कमरे में सो लेना चाहिए। वाखिरा का मशवरा मुझे बहुत माकूल लगा था। चौकीदार से इजाजत लेकर मैं उसके बिस्तर पर सो गया। रात सुकून से गुजर गई थी। सुबह की नमाज अदा करके घर वापस लौटा तो अपने कमरे में आराम के लिए आ गया, क्योंकि 8 बजे से पहले ही दिन की ड्यूटी देने वाला चौकीदार जाता था। फिर उस चौकीदार ने भी आराम करना होता है, इसलिए मैंने मुनासिब न समझा, क्योंकि सुल्तान साहब 10 बजे तक ऑफिस जाते थे। उस दौरान मैं भी अक्सर सो जाता था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी ताकि अगर मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाऊं तो मेरी चीख की आवाज कमरे से बाहर जा सके, कोई मेरी मदद को पहुंच जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका हूं। मैंने अजीब व गरीब वाकयात को अपने सर पर मुसल्लत कर लिया था। अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए मैं अपने ख्यालात पर गौर कर रहा था, जब अचानक ही मुझे सफेद रंग के बड़े से दुपट्टे में लिपटी हुई एक लड़की दिखाई दी, जो खिड़की से बाहर कुछ फासले पर लगे हुए फूलों को गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि नमाज अदा करने के बाद वो चहलकदमी करने के लिए लॉन में आ गई है और अब उन खूबसूरत फूलों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रही है। उस लड़की को मैं पहली बार देख रहा था। शायद रात को जो मेहमान खाने पर आए थे वो यही लड़की हो और ये सुल्तान साहब की कोई रिश्तेदार ही होगी। हो सकता है यहाँ पर रहने के लिए ही आई हो। उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने खुद कलामी की। सफेद दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा इंतहाई चमकदार और पुरनूर दिखाई दे रहा था। मैं तो उसके चेहरे की खूबसूरती में खो गया था। अपने इर्द गिर्द से बेखबर वो एक एक फूल को छूकर देख रही थी। अचानक निगाह उठाकर उसने मेरी तरफ देखा। शायद मेरी नजर की तपिश को उसने महसूस कर लिया था। एक लम्हे के लिए मैं गड़बड़ा गया और अपनी निगाहें झुका ली। मुझे अपनी कम अकली पर अफसोस हो रहा था। अगर उसने मेरी शिकायत सुल्तान साहब से लगा दी तो वो ना जाने क्या समझेंगे। सर झुकाते हुए मैंने सोचा। चंद लम्हों बाद जब सर उठाकर देखा तो वो मेरे कमरे की खिड़की के करीब खड़ी मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर मैं जल्दी से उठ खड़ा हो गया। वो सुल्तान साहब की मेहमान थी, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम थी। तुम कौन हो? इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा। इंतहाई नरम आवाज से उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा नाम तनवीर है और मैं सुल्तान साहब की गाड़ी का ड्राइवर हूँ। सर झुकाकर मैंने जवाब दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें शायद पहली बार देखा है। तुम आराम करो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी रात ही आराम करता रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, अगर पूरी रात आराम करते रहे हो तो सुबह के वक्त दोबारा आराम करने की बजाय ताज़ा हवा में सैर किया करो। हाकिमाना अंदाज से उसने कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैं कोशिश किया करूंगा कि सुबह के वक्त दोबारा सोने के बजाय चहलकदमी कर लिया करूं। सर झुकाकर मैंने जवाब दिया, शाबाश, सुबह की हवा ताज़ा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे तो वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो सुबह बिस्तर पर सोए रहते हैं। उसीले लहजे से उसने कहा और चली गई। उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि मेरी निगाहों के सामने से हट ही ना रहा था। उसकी छवि को अपने जहन से झटकने की कोशिश करते हुए मैं एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो सुबह बिस्तर पर सोए रहते हैं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। ऐसा ना हो कि मैं सो रहा हूं तो वो एक बार फिर मेरे सर पर आन खड़ी हो। उठकर बैठते हुए मैंने सोचा, उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रूप था जिससे मैं बहुत हद तक मरगूब हो चुका था। सुल्तान साहब को ऑफिस छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उनसे ये पूछना चाह रहा था कि घर में मेहमान के तौर पर आने वाली लड़की कौन है।
लेकिन मैंने उनसे ये पूछना मुनासिब न समझा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस बात का बुरा ही ना मान जाए। मैंने फाखरा से पूछने का फैसला किया, आज छोटी बेगम साहिबा ने बच्चों के साथ अपने मैके में जाना था, तुम उन्हें वक्त पर ले जाना और बेगम साहिबा से पूछ लेना कि शाम को किस वक्त लेने के लिए आऊं। वक्त की पाबंदी करना। मैं अपने ख्यालों में मगन था जब अचानक ही सुल्तान साहब की आवाज़ सुनाई देने पर मैं उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत खामोश खामोश रहते हो और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत उदास भी हो। क्या परेशान हो? अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए सुल्तान साहब ने पूछा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और मुझे कोई मसला या परेशानी भी नहीं है। कमरा चेंज करने की वजह से मुझे नींद नहीं आती, बस यही वजह है, और तो कोई मसला नहीं। ना चाहते हुए भी उन्हें मैंने अपने मसले के बारे में बता ही दिया था। तुम तो जवान आदमी हो, तुम्हें कमरा तब्दील करने से या बिस्तर तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। हर जगह पर जल्द ही एडजस्ट होने की और वहां के माहौल के मुताबिक आदी हो जाने की कोशिश करनी चाहिए। सुल्तान साहब ने मुझे समझाते हुए कहा। जी जी साहब जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि रात बिस्तर पर लेटते ही सो जाया करूं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बहुत देर तक करवटें बदलता रहता हूं और फिर ना जाने रात के किस वक्त आंख लगती है। नींद में भी बहुत बेचैनी महसूस होती है। सुल्तान साहब के समझाने पर मैंने जवाब दिया, रात को खाना खाने के बाद फौरन बिस्तर पर लेट जाया करो। खाना खाने के बाद चहलकदमी किया करो। मुझे लगता है कि तुम खाने के फौरन बाद सो जाते हो या बिस्तर पर लेट जाते हो, जिसकी वजह से ये सब मसाइल बन रहे हैं। आज से तुमने खाना खाने के बाद जल्दी नहीं सोना और कुछ देर वॉक भी करनी है। सुल्तान साहब ने मुझे हुक्म देते हुए कहा, जैसे आपको मुनासिब लग रहा है, मैं इंशाअल्लाह वैसे ही करने की कोशिश करूंगा। फर्माबरदारी का मुजाहिरा करते हुए मैंने जल्दी से कहा। सुल्तान साहब का ऑफिस आ चुका था। अल्लाह हाफिज कहकर गाड़ी से उतर गए और मैं घर वापस आ गया। सुबह फाखिरा नाश्ता लेने के लिए आई तो बहुत जल्दी में थी। कुछ देर मेरे पास बैठी भी ना थी। मैं उस मेहमान लड़की के बारे में उससे पूछ लेता। अभी भी मेरा जहन उसी के बारे में सोच रहा था जब अचानक ही फाखिरा कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। सुल्तान साहब ने तुम्हें बता दिया होगा कि आज छोटी बेगम साहिबा को उनके माँ बाप के घर छोड़कर आना है। वो तैयार हो चुके हैं और तुमसे कह रही हैं कि गाड़ी तैयार कर लो। मेरी तरफ देखते हुए फाखिरा ने कहा। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैं भी तैयार हूं और गाड़ी भी बिल्कुल तैयार है। अगर वो अभी निकलना चाहती हैं तो मैं ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता हूं। मैंने जवाब दिया। मैं यही कह रही हूं कि तुम अपनी सीट पर बैठो, वो आ रही हैं। फाखिरा ने जल्दी से कहा और जाने के लिए मुड़ गई। एक तो ये भी हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। अगर चंद घड़ी मेरे पास रुक जाती तो मैं उस हसीन और जमील लड़की के बारे में पूछ ही लेता। गाड़ी के करीब आकर मैंने फाखिरा को बुरा भला कहते हुए सोचा। मैं गाड़ी के करीब आकर खड़ा हुआ ही था कि दोनों बच्चे खुशी से झूमते हुए बाहर आते दिखाई दिए और फिर छोटी बेगम साहिबा भी उनके पीछे आती हुई दिखाई दी। मैंने एहतरामन गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। उनके बैठते ही ड्राइविंग सीट संभाल ली। बेगम साहिबा का मेका इसी शहर में था। आधे घंटे की मुसाफत थी। बेगम साहिबा ने मेरे कुछ पूछने से पहले ही शाम 4 बजे पिक करने का कह दिया था। सुल्तान साहब शाम को 5 बजे से पहले ऑफिस से छुट्टी ना करते थे, इसलिए मुझे उन दोनों को पिक करने में कोई मसला नहीं हो रहा था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके बाहर निकला तो सामने ही बरामदे में वो दोबारा खड़ी दिखाई दी। अब वो सुबह वाले हुलिये में ना थी। वो इंतहाई खूबसूरत सूट पहने हुए थी और दुपट्टा गले में झूल रहा था। उस वक्त भी वो गमले में लगे हुए किसी फूल को ही देख रही थी। खुद पर इख्तियार खोता हुआ मैं उसे देखने लगा। न जाने उसकी मासूम सूरत में ऐसी क्या कशिश थी कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकता था। उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे हेलो कहा और दोबारा फूल की तरफ मसरूफ हो गई। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ आ गया और खुद को सरजनिश करने लगा कि उसको देखते ही खुद पर इख्तियार क्यों खो देता हूं। कमरे की बजाय मैं छोटे से बरामदे में बैठ गया। मैं देखना चाह रहा था एक बार फिर उसके मासूम चेहरे को। मैं खुद को ऐसी हरकतें करने से मना कर रहा था, लेकिन मुझे अपने दिल पर कोई इख्तियार न था।
अचानक ही मेरे जहन में सुल्तान साहब का ख्याल आया, अगर उन्हें मेरी हरकतों का पता चल गया तो वो मुझे सख्त सजा देंगे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करने लगा, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम आराम ही कर रहे होते हो, कभी लेटे हुए होते हो और कभी बैठे हुए। कुछ काम भी कर लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। मेरे करीब आकर उसने मज़ाहिया अंदाज से कहा। मैं उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। मैं जिस काम के लिए इस घर में मौजूद हूँ वो काम कर देता हूँ, बाकी कामों से मेरा कोई सरोकार नहीं, तो फिर क्या करूँ? उसके मजाक को महसूस करते हुए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अपने आसपास देखो, कितनी हरियाली है और रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। उन फूलों के पास जाया करो, उनको छूकर महसूस करने की कोशिश किया करो। जब तुम उनके साथ वक्त गुजारोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे साथ बातें कर रहे हैं। लॉन में लगे हुए रंग बिरंगे फूलों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। उसकी बातें बहुत शायराना थी। एक बात की मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि उसे फूलों से बहुत प्यार है। मेरा ताल्लुक गांव से है और वहां पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए शायद यहाँ की हरी भरी क्यारियां और रंग बिरंगे फूल मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पाए। अफसोस भरे लहजे से मैंने कहा। बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर वो बैठ गई। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। वो इस घर की मेहमान थी या मालिकन, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे मुझे जानती हो। उस वक्त आपको बड़ी बेगम साहिबा के पास या अपने कमरे में होना चाहिए। आप तो मालिकन हैं, किसी मुलाजिम के पास बैठी हुई तो अच्छी नहीं लगती। मुझे खदशा था कि अगर कोई मुलाजिम उसे मेरे पास बैठे हुए देख लेता तो ना जाने क्या सोचता। तुम फिक्र मत करो, इस दुनिया में सब इंसान बराबर हैं। मैं किसी को नौकर और खुद को मालिक नहीं समझती। तुमसे बातें करके मुझे अच्छा लगा है। इंतहाई संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा। उसने मेरी तारीफ की थी। अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि सुल्तान साहब बहुत उसूल पसंद आदमी है, इसलिए मैं उस लड़की से बेतकल्लुफ होना अपने लिए और अपनी नौकरी के लिए मुनासिब ना समझ रहा था। तुम्हें मैं कह रही हूं ना कि बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हें कोई मसला ना होगा और ना ही तुम्हारी नौकरी को कोई फर्क पड़ेगा। उसने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। मुझे हैरत हुई थी कि उसने मेरे ख्यालात को भी जान लिया था। मैं जो कुछ सोच रहा था उसे भी पता चल गया था। ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मालिकन हैं और मैं मुलाजिम, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने सर झुकाकर कहा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर हम तुम्हारे कमरे में बैठकर बातें कर लेते हैं, उसने हुक्म देते हुए कहा और फिर खुद ही उठकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे खुद समझ ना आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, उस लड़की से कैसे जान छुड़वाऊं। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। चंद लम्हे पहले मेरा दिल सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन अब मैं होश से काम ले रहा था। आप कौन हैं और सुल्तान साहब की क्या लगती हैं? कमरे में आकर मेरे बिस्तर पर वो बैठ चुकी थी, इसलिए मैंने एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछा। मेरा नाम मुनव्वरा है और ये पूछकर क्या करोगे मैं कौन हूं? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं भी इंसान हूं? उसने अपना अजीब सा तारुफ करवाया था, लेकिन वो अपने नाम की तरह ही रोशन और पुरवकार थी। वो बहुत देर तक मेरे कमरे में बैठी रही, मुझसे मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में पूछती रही। अपने बारे में भी उसने बहुत कुछ बताया, लेकिन कोई बात ऐसी न थी जो मुझे समझ आ जाती। मैं तो ये भी ना जान सका था कि वो किस शहर से ताल्लुक रखती है और कब तक यहां पर रुकेगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ऐसा ना हो कि कोई मुझे तलाश कर रहा हो। अपनी जगह से उठते हुए उसने कहा और फिर मेरी तरफ देखे बगैर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने पर मैंने शुक्र अदा किया और एक लंबा सांस लेते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि फाखिरा दिन का खाना लेकर पहुंच आई थी। मुझे तुम्हारे कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। अपने घर वालों से बातें कर रहे थे? खाना मेज पर रखकर कुर्सी पर बैठते हुए फाखिरा ने पूछा। बहुत दिन हो गए थे, घर वालों से बात ही ना हुई थी। तुम तो जानती हो कि गांव में सिग्नल का कितना मसला होता है, इसलिए आज जब बात हो रही थी तो मैंने सबके साथ बात की। लापरवाह अंदाज से मैंने जवाब दिया। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि फाखिरा ने यह नहीं पूछा कि तुम किसके साथ बातें कर रहे थे। वो ये भी कह सकती थी कि तुम्हारे अलावा भी किसी और के बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जल्दी से खाना खा लो और मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। घर में बहुत काम है। बड़ी बेगम साहिबा आज मुझसे किचन की तफसीली सफाई करवा रही हैं। सुबह से सफाई कर रही हूं। ये वक्त आ गया है, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ।
अपनी जगह से उठते हुए फाखिरा ने कहा और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। मैंने अपने तमाम काम सरंजाम दे दिए थे और शाम होते ही सुल्तान साहब से इजाजत लेकर मैं अपने दोस्तों में चला गया था। सुल्तान साहब एक बिजनेसमैन थे। वो अपने हलके में सेठ साहब के नाम से मशहूर थे, लेकिन इंतहाई आजिजाना आदात के हामिल थे। उन्होंने जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल मुकर्रर किए हुए थे, उन्हीं के मुताबिक सब काम होते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि रात के वक्त मुझे कभी सुल्तान साहब को या उनकी फैमिली को कहीं बाहर लेकर जाना पड़ता, इसलिए मैं अमूमन शाम के बाद फारिग ही हो जाता था। अगर सुल्तान साहब को कोई काम होता तो वो मुझे रोक लेते थे, वरना दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दे ही देते थे। रात को जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो थोड़ी देर बाद ही फाखिरा खाना लेकर आ गई। वक्त की बहुत पाबंद थी। मुझे तो ऐसा लगता था इस घर में रहने वाला हर शख्स ही वक्त की बहुत पाबंदी करता है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि घर में मेहमान भी आए हुए हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। खाना खाते हुए मैंने फाखिरा से पूछा। आज वो आराम से बैठी हुई थी। अच्छा मौका था, इसलिए मैंने पूछ लिया, कौन मेहमान आए हुए हैं? मुझे तो नहीं पता। हैरान होते हुए फाखिरा ने कहा, अरे वही लड़की जो इधर उधर घूमते हुए दिखाई देती है, फूलों के साथ खेल रही होती है। उसके हैरान होने पर मैंने भी हैरत से पूछा, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चंद घड़ी तुम्हारे पास आराम करने के लिए बैठी थी, तुमने ना जाने कौन से किस्से कहानियां छेड़ दी हैं। मैं जा रही हूं, मेरे बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जिनको मैंने मुकम्मल करना है, झुंझुलाते हुए फाखिरा ने कहा और चली गई। थोड़ी देर बाद ही मुनव्वरा मेरे कमरे में आ गई। उस वक्त उसे अपने कमरे में देखकर मैं बहुत घबरा गया था। आप इस वक्त? अगर मुझसे कोई काम था तो फाखिरा के हाथ पैगाम भिजवा देती। हैरान होते हुए मैंने जल्दी से कहा, जब मेरा काम था तो मैं फाखिरा से क्यों कहती, बल्कि मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, आप हुक्म करें, क्या काम है, मैं अभी कर देता हूं। उसे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर मैंने जल्दी से सर झुकाकर कहा, बहुत जरूरी काम था, इसलिए खुद आना पड़ा। कुर्सी पर बैठते हुए उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, वही तो मैं आपसे कह रही हूं कि हुक्म करें कि मुझसे आपको क्या काम आन पड़ा है। उसे कुर्सी पर बैठते देखकर मैंने हैरत भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, मैं तुमसे बातें करना चाह रही थी, जी चाह रहा था कि कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, इसीलिए खुद चली आई। अगर फाखिरा को भेज देती तो मेरा मसला हल नहीं होता था। इंतहाई नरम लहजे से उसने कहा, मैं आपसे पहले ही मुआजरत कर रहा हूं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दिया जाए। आप मालिकन हैं और मैं मुलाजिम। उस वक्त आपका मेरे कमरे में आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो ये ना आपके लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। बेहतर यह है कि इस वक्त आप अपने कमरे में तशरीफ ले जाएं। इंतहाई आजिजाना अंदाज से मैंने मिन्नत करते हुए कहा, एक तो तुम बहुत डरते हो ना जाने तुम्हें किस बात की फिक्र लगी रहती है। जब मैं तुम्हें बार बार कह रही हूं कि फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा, फिर किस बात का डर है? कमरे में इधर उधर देखते हुए उसने इंतहाई लापरवाह अंदाज से कहा। मुझे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद फाखिरा बर्तन लेने के लिए आ रही थी। मेरे चेहरे पर तो पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं, खुद छुप जाऊं या मुनव्वरा को छुपा दूं। तुम ऐसा करो कि इस दरवाजे के पीछे छुप जाओ, वो आ रही है, बर्तन लेने हैं। परेशानी से मेरे मुंह से उल्टे सीधे अल्फाज निकल रहे थे। उसने मुझे हाथ के इशारे से तसल्ली दी और खुद दरवाजे के पीछे होकर खड़ी हो गई। वो नजरों से ओझल हुई तो मैंने शुक्र अदा किया। फाखिरा कमरे में दाखिल हुई तो मैंने कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। वो दिखाई न दे रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं लाइट ऑफ करने ही वाला था, मुझे नींद आ रही है। फाखिरा को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, मुझे अंदेशा था कि वो कहीं बातें करने के लिए बैठ ही ना जाए, इसलिए जल्दी से नींद का बहाना कर दिया। अच्छी बात है, अगर तुम्हें इस वक्त नींद आ रही है, नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान की सेहत भी खराब हो जाती है। बर्तन उठाते हुए उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। शुक्र अदा करते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलकर देखो, कुछ नहीं हुआ, वो चली गई है। अचानक से मेरे सामने आकर कहा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर वो आपको इस कमरे में देख लेती तो फिर क्या हो जाता। बिस्तर पर बैठते हुए मैंने बेबसी से कहा, न जाने वो किस मट्टी की बनी हुई थी। मैं उसे कमरे से जाने का कहता और वो घंटों मेरे कमरे में बैठी रहती। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, ऐसा ना हो कि सुल्तान साहब को इल्म हो जाए
और मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़े, लेकिन मेरी कोई बात उसको समझ में आती ही ना थी। मुझे भी उसके साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब वो कुछ देर तक मेरे कमरे में ना आती तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था कि वो चांद है और मैं जमीन का जर्रा। मुझे अपनी हुदूद और अपनी औकात का पता था, इसलिए मैं उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना सोच सकता था। एक दिन मैंने उसे दो टोक लहजे में कह दिया कि वो मेरे कमरे में मत आया करे। अगर हम किसी की नजर में आ गए तो सब हमारे किरदार पर शक करेंगे। उसे मेरी ये बात बहुत बुरी लगी और वो नाराज होकर चली गई। मैं न जानता था कि उसका नाराज होना मुझे किस मुसीबत में मुब्तला कर देगा। रात का पिछला पहर था। मैं आराम से सो रहा था। बहुत दिन गुजर चुके थे। मुझे अपने कमरे में अब कोई आवाजें सुनाई न दी थी। शायद मैं इस कमरे का आदी हो गया था, लेकिन मैं ना जानता था कि आज की रात मुझ पर कितनी भारी गुजरेगी। अभी मैं सोया ही हुआ था। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जलजला आ गया है। मेरी चारपाई जोर जोर से हिलने लगी और फिर अचानक ही चारपाई उल्टी हो गई। मैं फर्श पर और चारपाई मुझ पर उल्टी पड़ी थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ दिखाई ही न दिया था। चारपाई को खुद से हटाते हुए मैं उठकर खड़ा हुआ और दोबारा बिस्तर बिछाया। जैसे ही चारपाई पर बैठने लगा, एक इंतहाई काला और बहुत बड़ा सांप अचानक ही चारपाई पर न जाने कहां से आ गया। मैं तेजी से चंद कदम पीछे हट गया और कमरे में इधर उधर कुछ तलाश करने लगा जिसकी मदद से सांप को मार सकूं। चारपाई की तरफ देखा तो सांप गायब था। आंखें मलते हुए मैं उस कमरे में तलाश करने लगा। नाकाम होकर मैं दोबारा बिस्तर पर बैठ गया। एक लम्हे को मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो सांप सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बहुत देर तक मैं बाहर ही खड़ा रहा और फिर हिम्मत करके दोबारा अपने कमरे में वापस आ गया। हर तरफ सांप को ही देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी ना दिखाई दिया। ना जाने ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। बेबसी से मैंने सोचा और बिस्तर पर बैठ गया। अब तो नींद आने का सवाल ही पैदा ना होता था। सुबह सुल्तान साहब ने ऑफिस नहीं जाना था, छुट्टी थी, लेकिन मुझे तो अपने कमरे में नींद ही ना आ रही थी। कमरे से बाहर निकला तो वो मुझे एक फूल के साथ मसरूफ दिखाई दी। ना चाहते हुए भी मैं उसके करीब चला गया। लगता है कि आज रात तुम्हारी बहुत पुरसुकून गुजरी है, तंजिया मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। उसका लहजा बहुत चुपता हुआ महसूस हुआ। मेरा जवाब सुनने से पहले ही वो वहां से हट गई। शायद मुझसे नाराज थी, कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं दोबारा कमरे में वापस आ गया। फाखरा ने नाश्ता लाकर मेरे सामने रखा तो मैं अचानक ही चीख मारकर खड़ा हुआ। फर्श पर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दे रहा था जिसने अपना पूरा मुंह खोला हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो फाखरा को निगल लेगा। क्यों चीख रहे हो? सांप, सांप किधर है? सांप मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे शोर मचाने पर फाखरा ने ऊंची आवाज से कहा। अब फर्श पर कुछ भी न था। न जाने ऐसा क्यों होने लगा था कि मुझे हर तरफ सांप ही सांप दिखाई देते थे। बहुत दिन हो गए थे। मुनव्वरा भी ना आई थी, बल्कि मैंने उसे देखा भी ना था। सुल्तान साहब मेरी जहनी हालत से बहुत परेशान थे और वो मुझे एक जहनी अमराज के डॉक्टर के पास भी ले गए। कुछ अफाका ना हुआ। फाखरा ने अपने एक जानने वाले रूहानी आमिर को बुला लिया था। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बरसों से इस बंद कमरे में अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक आबाद थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ से हिजरत कर गए थे। लेकिन एक जिनजादी तुम्हें पसंद करने लगी थी। वो बार बार तुम्हारे पास आती थी, जिस पर तुमने उसे मना कर दिया। अब वो तुमसे सख्त नाराज है और तुम्हें अजियत देकर बदला ले रही है। आमिल ने असल सूरत हाल से आगाह किया। मैं नहीं जानता आप किस जिनजादी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो कोई जिनजादी नहीं मिली। मैंने हैरान होते हुए कहा। जो लड़की तुमसे रोज मिलती थी वो कौन थी? तुम उसे जानते थे? आमिल साहब ने हंसते हुए पूछा। वो तो कोई सुल्तान साहब की रिश्तेदार थी, मेहमान बनकर आई हुई थी। मैंने मासूमियत से जवाब दिया। तुम उस दिन भी मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन यहां पर तो कोई मेहमान नहीं आया हुआ। आमिल के जवाब देने के बजाय फाखरा ने कहा। मैं यकीन ना करने वाले अंदाज से कभी फाखरा का चेहरा देखता और कभी आमिल साहब का। तुम शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये आग से बनी हुई मखलूक जिस शख्स को पसंद कर लेती है, अगर उसे हासिल ना कर सके तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी तो जान से भी मार देते हैं। आमिल साहब ने इंतहाई संजीदा लहजे से कहा और एक तावीज मेरी तरफ बढ़ाया। उसे अपने गले में पहन कर रखना
और फिर पूरे कमरे में चारों तरफ फूंके मारने लगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो इस कमरे में नहीं आएगी। मैंने उसे समझा दिया है कि अगर वो तुम्हें तंग करेगी तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। तुम अपनी जिंदगी बच जाने पर शुक्र अदा करो। आमिर ने कहा। मैंने फाखरा का शुक्र अदा किया जिसने मेरा ये मसला हल किया था। तावीज़ गले में डालने के बाद मैं खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था। 2 महीने गुजर गए थे। उसके बाद वो मुझे कहीं भी दिखाई न दी थी, लेकिन उसका हसीन और मासूम चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। मैं सोचता था कि अगर वो जिंदादी ना होती तो शायद मेरी जिंदगी में शामिल हो जाती। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।